Okay, is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have learned how this logical address is converted into physical address with the help of page table. So logical address is divided into two parts, page number and page offset. Page offset is as it is carried out, but this page number is used to find out the frame number. And with the help of frame number and the offset, we used to get the exact physical address. So physical address is the actual location in the RAM by which the CPU will start implementing the process. So this is the interesting example which we have discussed in detail in the very last class. So just moving further. So this is just one slide which we missed in the last lecture. So here just we have the concept of free frame. So whenever any new process arrives in the system and it is to be executed, so first of all, uh, we know that each page requires exactly one frame. So if the process has n different pages, so at least n frames हमारे पास available होने चाहिए main memory के अंदर, then definitely we will be able to put those pages into the RAM. So here you can see a new process arrives and there are 4 different pages, page 0 to page 3, and operating system always keep a record of the free frames in the main memory. So you can see here we have 5 frames which are available. So you can see in this diagram, the free frames are available in the gray color, whereas the blue color blocks represents the occupied memory spaces. So we have 4 pages and we have 5 frames. So definitely very easily, it's the responsibility of the operating system. The operating system can allocate these 4 pages into any of these 5 frames. So this is picture number B, where you can see after allocation, only one frame, 15th number frame is free and rest 4 frames are occupied by the pages of this particular process. And side by side जैसे ही हमारा first page load होगा memory में, you can see this is page number 0 and साथ के साथ ही हमारा page table will be created. So you can see page number 0 is in frame 14, page number 1 is in frame 13, page number 2 is in 18, and page number 3 is in 20. So the major thing is that one page requires exactly one frame. So if we have n pages for a process, so at least n frames must be available in the main memory. Then only we will be able to allocate the process. Okay, so then next we have interesting concept of page table, and basically we will learn here one more interesting concept which is known as TLB, which is translation look aside buffer. So first of all, we must know that basically our page table is always kept in main memory. So page table भी हमारा main memory में ही store होता है, and for each process we have a separate page table. हर एक process के लिए अलग से page table बनता है, and basically we used to have set of registers. There are 2 registers. One is known as PTBR, page table base register, which always points to the page table, which is stored in the RAM. And second register is page table length register, PTLR, which indicates the size of the page table. So these are 2 registers which are always associated with page table, which is stored in RAM. But in this particular case, as you have seen in the concept of paging, we have one problem. So what is that problem? So the problem is in this particular paging strategy, every data or instruction access requires 2 memory accesses. तो अगर मुझे कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है या एक्सेस करना है सीपीयू को, तो हमें 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है. सो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर. सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं उस पेज को ढूंढने के लिए? पेज टेबल में. तो पेज टेबल कहाँ पर स्टोर है? मेन मेमोरी में. तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर मेन मेमोरी को एक्सेस किया. उसके बाद जब हमें पेज टेबल की हेल्प से फ्रेम नंबर पता चल जाता है और ऑफसेट पता चल जाती है, तब हम उस मेन मेमोरी, एक्चुअल मेन मेमोरी रैम से उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जाते हैं. सो दैट मीन्स वी आर एक्सेसिंग मेमोरी 2 times here. So first time we are going to page table. Page table is also located in the
मेन मेमोरी. सो एंड सेकेंड टाइम विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल हमें फ्रेम नंबर मिलता है. फ्रेम की हेल्प से हम फिर एग्जैक्टली जहाँ पर भी रैम में वो इंस्ट्रक्शन है उसको हम एक्सेस करते हैं. सो एग्जैक्टली 2 times वी यूज टू access the memory. So this problem of the two memory access problem can be solved with the help of a special fast lookup hardware cache, which is known as translation look aside buffer, or it is also known as associative memory. तो भाई बहुत simple सा concept है. We all know that cache memory is comparatively much faster than the main memory or RAM. So instead of using main memory, now we will have one more associative memory, which is also known as translation look aside buffer, जो क्या करेगा हमको पेज टेबल की हेल्प से फ्रेम्स फाइंड करने में हेल्प करेगा, लेकिन बहुत फास्टली. सो दिस इज द कंसेप्ट विच वी हैव टू लर्न टुडे, एंड वी विल टॉक अबाउट this TLB in detail. So generally TLB basically क्या है? TLB is a high speed memory. It is a cache memory which is also known as associative memory, and basically TLB is smaller as compared to our page table. So हम TLB के अंदर हमेशा लिमिटेड पेजेस की एंट्री को रखेंगे. एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. सो जस्ट try to understand this example. So CPU always generates logical address. तो हम सिंपल पेजिंग के हार्डवेयर में क्या करते थे? उस लॉजिकल एड्रेस को 2 पार्टीशंस में डिवाइड करके हम पेज टेबल में फाइंड आउट करते थे फ्रेम, एंड फ्रेम की हेल्प से हम एग्जैक्टली फिजिकल एड्रेस जनरेट करते थे. बट नाउ हेयर यू कैन सी जस्ट बिफोर द पेज टेबल हमने एक TLB यूज की, यानी कि एक कैश मेमोरी यूज की, एसोसिएटिव मेमोरी यूज की, विच इज मच फास्टर देन द मेन मेमोरी. सो पर्पस क्या है ये यूज करने का? लेट्स डिस्कस. सो पहले देखते हैं TLB के अंदर है क्या. सो TLB ऑल्सो कंटेन्स द सेम thing which we used to have in our page table. So here you can see we will have the entries for the page number, and here we will have the corresponding frame number. तो कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है ये डिटेल्स हमें मिलेगी TLB से ही. लेकिन यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सिंपल पेजिंग कंसेप्ट में हमें 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है. पहले हम पेज टेबल में देखते हैं, तो पेज टेबल भी हमारा मेन मेमोरी में स्टोर है. पेज टेबल हमें फ्रेम नंबर बताता है, फ्रेम नंबर से हम जब डेटा को एक्सेस करते हैं वो भी मेन मेमोरी में स्टोर है. तो मेन मेमोरी एज कंपेयर टू कैश मेमोरी स्लो होती है. तो हम अपने सर्च को या एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं. दैट्स वाई वी यूज दिस TLB concept. So here you can see जब भी CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 parts, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट. नाउ इंस्टेड ऑफ चेकिंग दैट पेज नंबर और सर्चिंग दैट फ्रेम नंबर इन पेज टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस पेज को हम कहाँ चेक करेंगे? इस TLB में, विच इज नोन एज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. रीजन बीइंग दिस इज फास्टर. देखो 2 रीजन है यहाँ पे. कैश मेमोरी हमेशा फास्टर है मेन मेमोरी से, रीजन नंबर 1. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज TLB हमेशा स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू पेज टेबल. तो पेज टेबल तो आपकी सारी एंट्रीज कंटेन करेगा, लेकिन TLB के अंदर हम सिर्फ लिमिटेड पेजेस की ही डिटेल रखेंगे. तो मैंने आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, मेमोरी कंसेप्ट में जितनी कम स्पेस होगी उतनी जल्दी हम सर्च कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा स्पेस होती है उतना सर्च का टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाता है. सो 2 मेजर रीज़न है. कैश मेमोरी वैसे ही फास्ट है मेन मेमोरी से, एंड सेकेंड रीज़न इज TLB के अंदर बहुत लिमिटेड एंट्रीज हैं. दैट मीन हमारा सर्च स्पेस कम हो गया, तो सर्च स्पेस कम हो गया तो हम जल्दी सर्च कर पाएंगे. बट एक प्रॉब्लम क्या रहेगी? यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे जो रिक्वायर्ड पेज है वो मिले या फिर ना मिले. सो दिस इज द मेजर इशू हेयर इन द केस ऑफ TLB, बिकॉज पेज टेबल में तो आपकी सारी की सारी एंट्रीज हैं, कंप्लीट डिटेल्स हैं, लेकिन TLB के अंदर हमारे पास कैश हमेशा लिमिटेड होती है, तो हम सारी एंट्रीज को नहीं रख सकते. कैश अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है, ये भी हमने डिस्कस किया था. सो TLB हमारे पास लिमिटेड है, और उस लिमिटेड कैश मेमोरी के अंदर हम कुछ ही पेजेस की डिटेल रख सकते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कोई प्रोसेस अगर हायर प्रायोरिटी का है तो हम उसकी डिटेल रख दें कि CPU को पता है कि ये हमें पहले एग्जीक्यूट करना है बाकी सारे प्रोसेसेस के कंपैरिजन में. सो ये डायग्राम आपको बहुत
इजिली सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, सो इंस्टेड ऑफ नाउ गोइंग डायरेक्टली टू द पेज टेबल, सबसे पहले हम उस पेज को कहाँ चेक करेंगे, इस टीएलबी के अंदर, विच इज द कैश मेमोरी। तो अगर वो पेज हमें इस टीएलबी के अंदर मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं टीएलबी हिट। दैट मीन्स जिस पेज को हम सर्च कर रहे थे वो टीएलबी के अंदर मिल गया। तो अगर वो टीएलबी के अंदर है, दैट इज नोन एज टीएलबी हिट, एंड डेफिनेटली नाउ वी विल बी एबल to have the frame number, and with the help of frame number and this offset, the physical address will be generated. Second case, if we are looking for any page and that is not available in the TLB, because मैंने अभी डिस्कस किया कि TLB एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस वाली कैश मेमोरी है जिसके अंदर हम सारे पेजेस की डिटेल को नहीं रख सकते, लेकिन पेज टेबल आपका कंप्लीट डेटा कंटेन करता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, इफ एनी पेज नंबर इज नॉट देयर इन द टीएलबी, देन वी विल गो इनटू द पेज टेबल, एंड दैट पर्टिकुलर केस इज नोन एज टीएलबी मिस। तो अगर टीएलबी के अंदर मिल गया हमें पेज, दैट इज टीएलबी हिट, एंड इफ द पेज इज नॉट अवेलेबल, दैट इज टीएलबी मिस, एंड इन द केस ऑफ टीएलबी मिस वी विल use the same scenario, the older scenario. We will go back to the page table. Page table से हमें उस पेज के corresponding frame number मिलेगा, और फिर उस frame number से और offset की help से हमें physical address मिल जाएगा. So this is the major difference, or this is the use of this translation look aside buffer, which is TLB, and it is also known as associative memory. So this is the concept of translation look aside buffer. And there is one important concept which is related to translation look aside buffer, is to calculate the effective access time. तो इसको जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको जरूर आता है एग्जाम में, हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। तो ये जो सारा कंसेप्ट है इफेक्टिव एक्सेस टाइम का, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टीएलबी, और जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो पहले यहाँ स्लाइड में क्या लिखा है जरा इसको देख लेते हैं। एसोसिएटिव लुकअप को अगर मैं किसी एक टाइम यूनिट से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, सपोज लेमडा या जो भी ये सिंबल है, तो इसका मतलब क्या है कि इफ आई वांट टू सर्च एनी पेज इन ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर और इन एनी एसोसिएटिव मेमोरी, तो जो उसका एक्सेस टाइम होता है वो 10% होता है किसका, मेन मेमोरी में एक्सेस करने से। सपोज मुझे रैम में कोई पेज ढूंढना है, अगर मुझे 100 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, तो टीएलबी के अंदर वो 10 नैनो सेकेंड्स या उससे कम में भी मुझसे एक्सेस हो जाएगा। सो इतनी फास्ट है हमारी कैश मेमोरी एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर 1. Now there come two important terms. One is known as hit ratio and second is known as miss ratio. तो hit ratio क्या है? Hit ratio is the percentage of times that a page number is found in the TLB. तो अगर मैं suppose 10 times सर्च कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को, और 10 में से मुझे 8 टाइम्स वो पेज टीएलबी में मिल जाता है, सो दैट मीन्स 80% इज द हिट रेशियो. सो 80% हिट रेशियो मीन्स आउट ऑफ 100 टाइम्स 80 टाइम्स पेज नंबर was found in the TLB and 20 times the page was not there, and for that 20 times I have to go to the पेज टेबल अगेन. सो सबसे पहले हम टीएलबी चेक करेंगे, अगर टीएलबी में है दैट इज नोन एज टीएलबी हिट, एंड हिट रेशियो इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द पेज इज फाउंड इन द टीएलबी, और जितने टाइम नहीं मिला दैट इज नोन एज मिस रेशियो. सो here is one interesting example you can see. so यहाँ पे आपको देखो वैल्यूज दे रखी हैं, एक एग्जांपल दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 80%. अल्फा इज द हिट रेशियो, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 टाइम्स 80 टाइम्स पेज नंबर जिसको हम ढूंढ रहे थे वो टीएलबी के अंदर मिला. 20 नैनो सेकेंड्स क्या है, एक्सेस टाइम है टीएलबी सर्च का, यानी कि अगर मैं कैश मेमोरी में से पेज नंबर को फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 20 नैनो सेकेंड लगते हैं, और 100 नैनो सेकेंड कब लगते हैं, जब वो मेन मेमोरी से एक्सेस करना पड़ेगा. सो दिस इज द बेसिक्स टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सेस टाइम. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल. तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें हिट रेशियो गिवन है 80%, 20 नैनो सेकेंड टाइम गिवन है जब हम टीएलबी में से एक्सेस करते हैं या सर्च करते हैं, यानी कि जब मुझे वहां से पेज मिल जाता है. और अगर इन दैट पर्टिकुलर केस अगर टीएलबी के अंदर पेज नहीं है, तब मुझे वापस कहाँ जाना पड़ेगा, पेज टेबल में. पेज टेबल कहाँ पर स्टोर है, मेन मेमोरी में. तो मेन मेमोरी से एक्सेस करने का जो टाइम गिवन है वो 100 नैनो सेकेंड है. सो दैट मीन्स टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सेस टाइम, तो आपका देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला गिवन नहीं है स्लाइड में, आई एम जस्ट टेलिंग यू. हिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय
तो एक बात जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ जहां पर टीएलबी हिट हो गया। तो मैंने एक पेज नंबर को सर्च करना था जो मुझे टीएलबी में मिल गया। सो यानी कि फर्स्ट टाइम मैं टीएलबी को एक्सेस करूंगा, तो मेरे पास जो फर्स्ट टाइम लगेगा वो टीएलबी एक्सेस का लगेगा। और टीएलबी एक्सेस होने के बाद मुझे वापस फाइनली कहाँ जाना पड़ेगा, रैम में ही जाना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए। तो इन केस मेरा टीएलबी हिट हो जाता है, तो एक बार मैं टीएलबी वाली यानी कैश मेमोरी से डेटा को एक्सेस करूंगा। बेसिकली मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पेज नंबर की हेल्प से फ्रेम नंबर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो एक बार ये वाली मेमोरी एक्सेस होगी, और फाइनली जब मुझे फ्रेम नंबर मिल जाएगा, तो एक्चुअल डेटा तो हमारा हमेशा कहाँ पड़ा है भाई, मेन मेमोरी में ही पड़ा है। तो एक बार टीएलबी एक्सेस करनी पड़ेगी और एक बार मुझे मेन मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी। दिस इज द कंसेप्ट। लेकिन अगर टीएलबी मिस हो जाता है, यानी कि टीएलबी के अंदर मेरा पेज नंबर नहीं मिला, तो उस केस में देखो क्या होगा। सबसे पहले एक बार तो हम टीएलबी में जाएंगे, वो वाला एक्सेस टाइम यूज होगा। यहाँ पर हमें सक्सेस नहीं मिली, फिर हम दोबारा कहाँ जाएंगे, पेज टेबल में। तो हम यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हैं, मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से हमें डेफिनेटली फ्रेम नंबर मिलेगा। और थर्ड टाइम हम फिर से दोबारा फाइनली एक्सेस कहाँ से करेंगे, रैम से। तो ये ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। अगर आपको ये समझ आ गया देन डेफिनेटली आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन। देयर आर टू केसेस। पहले या तो टीएलबी हिट हो सकता है या टीएलबी मिस हो सकता है। टीएलबी हिट का मतलब क्या है, मुझे मेरा पेज नंबर टीएलबी के अंदर ही मिल गया। तो अगर टीएलबी हिट होता है, इन दैट केस सबसे पहले हम टीएलबी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर जो इसको एक्सेस करने का टाइम है वो लगेगा, प्लस जब मुझे यहाँ से फ्रेम नंबर मिल जाएगा तो फाइनली जो मेन मेमोरी से मुझे एक्सेस करने का टाइम है वो लगेगा। सो टीएलबी हिट के केस में ये वाला एक बार, द टाइम नीड्स टू एक्सेस TLB plus the time needs to access the main memory. This is the concept. But in the case of TLB miss, अगर TLB miss होता है तो उसमें भी देखो हम फर्स्ट टाइम तो ट्राई कर रहे हैं कि हम TLB में ही सर्च कर रहे हैं। तो एक बार जितना टाइम TLB को एक्सेस करने में लगेगा वो तो डेफिनेटली यहाँ भी लगेगा। मिस होने के बाद वापस हम पेज टेबल में गए तो सेकेंड टाइम लगेगा मेन मेमोरी का, और उसके बाद पेज टेबल से हमें डेफिनेटली फ्रेम नंबर मिलेगा। तो थर्ड टाइम हम फिर से मेन मेमोरी में गए। तो टीएलबी मिस के केस में क्या होगा, एक्सेस टाइम कौन कौन से ऐड होंगे, एक बार टीएलबी का एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। टीएलबी हिट के केस में टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर नहीं है, यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बट इफ यू आर clear with the concept, so I'm just going to discuss the numerical based on this concept. ओके, सो हमको यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। हिट रेशो 80% है, यानी कि 100 में से 80 टाइम्स मेरा टीएलबी हिट हुआ और 20 टाइम्स मेरा टीएलबी मिस हुआ। अगर मैं टीएलबी में से सर्च कर रहा हूँ पेज को तो मुझे 20 नैनो सेकेंड्स लगते हैं। एंड इफ वी यूज to access the content from main memory, now it requires 100 nanosecond. क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे हमेशा, कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। सो इफेक्टिव एक्सेस टाइम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय EAT इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। अब जरा देखो ध्यान से, हिट रेशियो 80% गिवन है, यानी कि इस केस में टीएलबी हिट हुआ होगा। तो टीएलबी हिट हुआ होगा तो फॉर्मूला क्या है, हिट रेशियो इनटू सम ऑफ दोज मेमोरीज। तो दोज मेमोरीज की बात करें तो हिट रेशियो के केस में देखो क्या होगा, टीएलबी हिट हुआ होगा तो टीएलबी हिट में मींस एक बार हम सबसे पहले टीएलबी में जाएंगे। तो टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम कितना है, 20 नैनो सेकेंड्स, प्लस वहां पर मुझे मिल जाएगा फ्रेम नंबर। तो मैं फाइनली अपने डेटा को एक्सेस करूंगा कहाँ से, मेन मेमोरी में। तो 100 नैनो सेकेंड्स फाइनली लास्ट में मेन मेमोरी से एक्सेस करने में लगेगा। तो 0.80 और यू कैन से 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 प्लस 100, सो इट विल बिकम 120। सो दिस इज the portion which is representing the hit case when TLB hit. बट सिर्फ 80% केसेस में ही हुआ है, बाकी 20% केसेस में क्या है, TLB मिस हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 0.20, यानी कि 20/100 इंटू, अब देखो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई होगा। अगर TLB मिस हो गया तो सबसे पहले तो हम एक बार TLB में गए थे उस पेज को सर्च करने में, तब हमें वहाँ पे क्या लग गए, 20 नैनो सेकेंड्स हमें तब लगे। लेकिन हमें हमारा पेज TLB में नहीं मिला, तब हम कहाँ चले गए, पेज टेबल में। पेज टेबल कहाँ पर स्टोर है, मेन मेमोरी में, यानी कि पेज टेबल से एक्सेस करने में मुझे 100 नैनो सेकेंड्स लगे। तो 20
प्लस 100 120, एंड पेज टेबल से मुझे फ्रेम नंबर मिला, और फाइनली जो मेरा डेटा है वो मेन मेमोरी में रैम में है, तो फिर से मुझे 100 नैनो सेकेंड्स फिर से लग गए उस एक्चुअल डेटा को एक्सेस करने में. सो इट विल बी 20 प्लस 100, सो इट विल बिकम 220, and it will be multiplied by with the miss ratio. So it is 0.20 into 220. So if you will calculate it, overall effective access time to access this particular data will be 140 nanoseconds. So this is how you have to solve this numerical. So if you have any doubt, anyone, you can ask me. और एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर आपको गिवन है, कंसिडर द स्लोअर मेमोरी बट बेटर हिट रेशो. तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो उसको एक्सेस करने में 140 नैनो सेकेंड्स लग रहे हैं अब 100 की जगह, लेकिन यहाँ पर हिट रेशो 98 है, यानी कि 100 में से 98 टाइम्स मुझे पेज टीएलबी के अंदर ही मिल रहा है. तो इस केस में अगर मुझे इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना होगा, सो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला. सो हिट रेशो को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारी मेमोरीज एक्सेस करनी पड़ेंगी व्हेन देयर विल बी अ टीएलबी हिट. सो 0.98. देन टीएलबी हिट के केस में एक बार टीएलबी सर्च करेंगे 20, एंड वहीं पे हमें पेज मिल जाएगा, फ्रेम का पता चल जाएगा. देन वन टाइम वी विल एक्सेस मेन मेमोरी. सो इट विल बी 0.98 इंटू 160 प्लस. उसके बाद 2% हमारी क्या है, मिस रेशो भी है. सो 2/100. उस केस में एक बार हम टीएलबी में जाएंगे और 2 बार हम मेन मेमोरी में जाएंगे, मतलब एक बार पेज टेबल में, एक बार मेन मेमोरी में. सो इट विल बी 20 प्लस 140 प्लस 140. सो इट विल बी 300 इंटू 0.02. So in that particular case, you will see the effective access time will be increased because hit ratio is more. So it will be 162.8 nanoseconds. So this is how you have to calculate the effective access time in the case of this TLB concept. And definitely यहाँ से आपको एक numerical आपके T3 एग्जाम में मिलेगा. So basically फॉर्मूला क्या है, हिट रेशो को हमने मल्टीप्लाई करना है उस टाइम से जो हमें TLB हिट के टाइम पर लगता है, प्लस मिस रेशो को हमें मल्टीप्लाई करना है उस पर्टिकुलर टाइम से जो हमें TLB मिस के केस में लगता है. हिट के केस में एक बार TLB का टाइम प्लस एक बार मेन मेमोरी का टाइम, दैट इज ओके. एंड इन द केस ऑफ TLB मिस, एक बार हम TLB में पहले जाएंगे, वहां से फिर हमें पेज नहीं मिलेगा तो पहले हम पेज टेबल में जाएंगे, फिर हम मेन मेमोरी में जाएंगे. तो यहाँ पर 2 बार ये मेन मेमोरी वाला ऐड हो जाएगा एक बार TLB सर्च से. सो दिस इज हाउ you have to calculate the things. So just let me know once in the chat box if anyone having any doubt regarding how to calculate the effective access time. Any doubt, anyone? Okay, thank you. So just let me continue. So this is how you have to calculate the effective access time, and I hope the overall concept, the entire concept of this translation look aside buffer is clear to you. This TLB is also known as associative memory. It also contains the exactly the same content of the page table, लेकिन ये comparatively छोटी है memory, तो हम इसमें complete entries नहीं रखते. It always consists of limited entries, and just because of limited entries, there is a possibility that some of the pages will not be there in the TLB. So if the page number is found, then it is known as TLB hit. And if it is not found, then it is known as TLB miss. And in the case of TLB miss, we always go back to the page table. वहाँ हमें definitely हमारा page number मिलेगा, page number से frame number मिलेगा, frame की help से हम physical address फाइंड आउट करके अपना एक्चुअल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, TLB एज वेल एज हाउ टू कैलकुलेट द effective access time. Okay, so moving on to just last 1 or 2 smaller topic, not much important. So memory protection is also very interesting concept. Major purpose is that if any space is occupied by any page, then कोई और पेज किसी और प्रोसेस का उस ऑक्यूपाई स्पेस पे आकर ना सेट करे, उस ऑक्यूपाई स्पेस को ना ओवरलैप करे, या फिर कोई ऐसे एड्रेस पर हमारा पेज नंबर ना चला जाए जो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो हेयर in the case of memory protection, we used to have one extra bit which is known as valid invalid bit. So with this diagram it will be more clear. So you can see we have a process which is divided into 6 pages from page 0 to page 5, and we have main memory which are divided into frames. So here you can see
In the page table, we used to have one extra bit which represents whether this particular data or information is valid or not. So you can see page number 0 is in 2, page number 1 is in frame 3, page number 2 is in frame 4, and page number 3 is in frame 7. So we have information from page number 0 to 5, and a valid bit is associated with all these legal addresses in the पेज टेबल. बट फॉर लास्ट 2 पेजेस वो दोनों पेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, पेज 0 और पेज 6 और पेज 7. तो उसके केस में हमने साथ में एक इनवैलिड बिट को एसोसिएट कर दिया है. सो यू कैन सी वन एडिशनल बिट इज जनरली अटैच्ड टू द ईच एंट्री इन द पेज टेबल which is known as valid invalid bit. And when this bit is set to valid, जब भी हम इस bit को valid set करेंगे, that means the associated page is in the लॉजिकल एड्रेस, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और एक वो लीगल पेज है. बट वेन एवर दिस बिट इज सेट टू इनवैलिड, द पेज इज नॉट इन द प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस पेज. तो वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता पेज के लॉजिकल एड्रेस में. सो दिस इज हाउ वी कैन हैव एन आइडिया. We can just try to protect our memory. So this is what is given in this entire slide. And moving to the last topic for today, which is known as shared pages. So with the help of this paging concept, we can have the important, interesting concept of shared pages. So now here you can see we have 3 different processes: process P1, process P2, and process P3. And all these 3 processes are divided into 4 different pages. But now you can see here the first 3 pages of all the 3 processes contains the common data. So it can be any common code or anything which needs to be shared. So हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था. सो इस केस में आप जरा ध्यान से देखोगे तो बेसिकली क्या है ये शेयर्ड पेजेस का कंसेप्ट. तो यहाँ पर ED1, ED2, ED3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है. सो ऑल दीज 3 प्रोसेसेस P1, P2 and P3 consists of this common data. So to put these processes into the RAM, we need not required separate frames. So आप देख सकते हो ED1, ED2, ED3 एक ही बार हमारे frames में लोकेटेड हैं. हमने इनको 9 फ्रेम्स नहीं एलोकेट किए, बिकॉज ये कौन सा पेज है जहाँ पे हमारा प्रोसेसेस के बीच में कॉमन डेटा है. सो वो कुछ भी हो सकता है. तो अगर कॉमन डेटा है तो हम डेफिनेटली पेजिंग के कंसेप्ट में उसको एक ही फ्रेम में एक्सेस कर सकते हैं, और जिस भी प्रोसेस का वो एग्जीक्यूट होगा तो वो सभी के लिए एग्जीक्यूट होता जाएगा. एंड डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू द पेज टेबल ऑल्सो. सो यू कैन सी पेज नंबर 0 is there in the frame number 3, and page number 2 is 0, 1. 1 is in page number 4, and this ED3 is in frame number 6. So this is common for all the processes. तो आप तीनों पेजेस के पेज टेबल को चेक कर सकते हो, 3 4 6 3 4 6 3 4 6. सो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा प्रोसेस जो डिवाइड होगा वो शेयर्ड पेजेस को, यानी कि कुछ कॉमन कंटेंट को शेयर करता होगा. आप लास्ट पेज चेक कर सकते हो, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 वो कॉमन नहीं है. दैट इज समथिंग प्राइवेट और which is not the shared content. So for that, definitely a separate frame will be allocated. So you can see data 1 is there in frame number 1, data 2 is there in frame number 7, and data 3 is there in frame number 2. So this is the concept of shared pages. So paging में ये possible है अगर 3-4 processes इकट्ठे execute हो रहे हैं या RAM में हैं और उनमें कुछ common content है और वो pages में divide हैं, तो हम उन pages को कॉमन फ्रेम में एलोकेट कर सकते हैं और वो प्रोसेस उनको कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड पेजेस. सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई सेल्फ हियर टुडे. आई एम नॉट कंटिन्यूइंग फर्दर. So in the next lecture, we will talk about the structure of the page table, and we will start the second technique, which is known as segmentation. So if anyone having any doubt regarding today's lecture, whatever I have discussed, the concept of translation look-aside buffer, how to calculate the effective access time, and how actually TLB works, what is the concept of TLB hit and TLB miss. So if anyone having any doubt, you can ask me. Otherwise, we will just continue the next topic in the next lecture.